So NCHM JE preparation is this what this video is about. So I gave the NCHM JE exam and I got into IHM Mumbai, which was my dream college, and I live in Maharashtra, so that's why I targeted this college and I got into it, right? So today I'm going to tell you how I cracked the NCHM JE exam and got into IHM Mumbai within a preparation time of 7 days only. The exam is very simple, guys. It is not a difficult one. You can easily get into the best hotel management school by just a preparation of 7 to 14 days. Okay, so I'm not a YouTuber or a I don't run these educational exam ka channels. This is simply how I prepared for the exam, so I can help the people out there, the students out there, who are going to give this exam, all the hotel management aspirants who are finding ways to study, right? Because होता ये है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं, we need a certain amount of guidance in the right direction that helps to get a good rank, right? Or else we keep wasting time on wrong suggestions given by the fake people on YouTube. That's why I have created this very basic video from a PDF help, from a PDF's help, and I'm not going to fancy you with different transitions and stupid nonsensical videos and photos and all those gimmicky stuff. I'm just going to tell you what works and in the most efficient way, right? So this is my result to prove that I gave the exam. This is my roll number, this is my rank, right? This is my name, Ramgiri Anmol Naresh. So I fall into OBC, which I got an advantage of, and my category closed at 3253 something. I'll show the exact list to you as well. So yeah, this is the result. If you fall into any category and you want to understand where your closing rank belongs, I'll attach a link to that as well. So you don't need to worry about anything when it comes to information. I have sorted it out for you. I have all the links in the description. I don't run ads. This is just a video to help all the aspirants, all the students out there, right? So there is there's nothing, this is free advice. लेना है तो लो, नहीं तो मत लो. I faced a lot of problems during the exam, so इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो प्रिपरेशन करते समय और वो अपना टाइम सिर्फ पढ़ाई में खर्च करे, इधर उधर नहीं, राइट? सो IHM चेन्नई का क्लोजिंग रैंक ये था, ओपनिंग रैंक ये था, राइट? सो वॉट एवर इज़ योर टारगेट कॉलेज, ड्रीम कॉलेज, मार्क द क्लोजिंग रैंक फॉर इट, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. Unluckily or luckily, I live in Maharashtra, so I needed Mumbai, and this is a very difficult rank to get. And the people who are aiming for Pusa, which is the best IHM to be at, which is in New Delhi, they have to get a 234 if you are in open. But if you are in OBC, or if you are a PWD candidate or any other candidate like an SC, ST, you have considerably higher closing ranks, which I have a list of. So I'll just show you it on my browser first, and then you can look at it. I'll leave the link down in the description if you want. So this is the detailed list. So how do you check this table is simply, if you want to, let's say, get into IHM Bangalore, so your closing rank for open becomes 811. So अगर आपका rank for example 800 आता है, तो आप बैंगलोर जा सकते हैं, काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा. बट अगर आपका रैंक 811 से आगे आता है, सो यू कैन नॉट गो. एंड दिस इज़ 2018 कट ऑफ, और हर साल का ये ऐसे ही होता है. आई हैव टेकन 2018 जस्ट बिकॉज आई गेव द एग्जाम इन 2019 एंड माई रिजल्ट इज़ ऑफ 2018. बट ये ही कट ऑफ्स होते हैं ऑलमोस्ट हर साल, राइट? सो yeah, this is how it is. If you are in open but a PWD candidate, your closing rank goes way
up, which is 11,364 guys, which is crazy upgrade. Right? So इस हिसाब से देखना होता है, इस हिसाब से समझना होता है कि आपको रैंक कितना लाना है. एक बार आपको समझ गया कि आपके ड्रीम कॉलेज का क्लोजिंग रैंक क्या है, फिर हम देखेंगे कि आपको मार्क्स कितने लाने हैं. इफ़ एनी ऑफ यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड इन हिंदी, आई try to speak in English, but my natural instincts come in Hindi. I'm a desi guy, so please adjust. So yeah, this is how it is. So IHM Mumbai का हर चीज़ का देख सकते हो. I'll leave down this link in the description. Don't worry, I'm here to help you out. Now let's go back to the PDF. अगली चीज़, काम की चीज़, टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आप लोगों का. What is a good score? अगर आप पूसा एम कर रहे हो तो आपको 95 परसेंटाइल लाना होगा. इफ़ यू वांट पूसा यू नीड अ 95 परसेंटाइल. इफ़ यू नीड मुंबई, इफ़ यू नीड कोलकाता, इफ़ यू नीड गोवा, यू नीड अ गुड टू वेरी गुड स्कोर के बीच में ही. एंड हाउ मच do you need? It is 760. The marking scheme of NCHM JEE is +4 -1. +4 is for a correct answer and -1 is for a negative answer. So this is how your score should look like. एंड अगर हम क्विकली देखें कि आपको कितना सही आंसर्स लेके आना है, वो है 175. तो दिस इज़ वेयर माई एक्सपीरियंस कम्स इन. आई एम सेइंग टू यू दैट 200 क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस. इफ़ यू डोंट नो दिस ऑलरेडी दैट योर एग्जाम इज गोइंग टू consist of 200 questions, you better check the pattern first, the syllabus first before coming in onto this video, right? But आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसमें से 150 सही लाने हैं. दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. मुझ पे ट्रस्ट रखो. गेट अ 150 प्लस क्वेश्चंस का स्कोर विच इज़ 150 into 4 विच इज़ 600 का स्कोर. 650 तक पहुंच जाओगे किसी तरह तो आई थिंक पूसा या मुंबई तो पहुंच ही जाओगे. ठीक है, अगर आप ओपन में हो तो की बात हो रही है. ये सारी जो बातें हो रही है ये ओपन वालों के लिए हो रही है, विच इज़ द टफेस्ट. और जो भी ओपन के अलावा है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ. इससे कम में आपको लेके आना है तो आप आराम से घुस जाओगे इस कॉलेजेस में, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको, मेरा जो रैंक है उसमें मैंने 760 नहीं लाया है, मैंने 760 से कम स्कोर लाया है. बट मैं बता नहीं सकता आपको कि कितना स्कोर लाया, बिकॉज NCHM डिड नॉट रिवील द स्कोर व्हेन आई गेव द एग्ज़ाम. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस. बट I have only this handy which gives you a range which you should be targeting in your mock tests, right? I'll be coming to mock tests as well. Don't worry, I'm here to help you out. आपको बस 14 दिन का समय देना है and you're in Pusa. Don't worry, if you are a dedicated person, you'll get into Pusa, no problem. What and how to prepare, right? ये बहुत बड़ी मशक्क़त है लोगों की ज़िंदगी में कि यार how to prepare, what to prepare. आप अभी 12th स्टैंडर्ड से निकले हो मे बी and you don't know what to do, how to do. This is a big transition for you guys, right? So this is the thing which I was talking about, 200 questions, right? So this is incorrect, total marks नहीं है ये. 200 questions होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, that's 180 minutes. ये 180 मिनट है आपके पास. इसमें आपको 200 क्वेश्चंस दिए हैं और इसमें आपको 150 क्वेश्चंस का सही जवाब देना होगा. ओके, वेरी इजी पेपर गाइस, वेरी इजी. इसीलिए मैं 14 डेज़ में प्रिपेयर अगर कर रहे हो कोई एग्ज़ाम, इससे इजी पेपर हो नहीं सकता. हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर. सीधा जाओ अमेज़ॉन पे, ये किताब ख़रीदो, इस किताब को ख़रीदो. अरिहंत की ये किताब, मेरा कोई लेना देना नहीं है अरिहंत से, या मैंने कोई आपको एफिलिएट लिंक नहीं दिया डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैंने ये किताब ख़रीदी थी और इसी से प्रिपेयर किया था एंड इट हेल्प मी अ लॉट. हर चीज़ जब एक किताब में मिल जाती है, यू डोंट हैव टू मेक अ यूट्यूब सर्च और रैंडम go to a random website with a lot of pop-ups and email IDs and random shit going on. That's a chaos. एक किताब में जब सब मिल जाता है, it is really interesting. It really helps you invest your time in the right direction, right? तो अभी आपको क्या करना है, लैंग्वेज, इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी विच इज़ क्वांटिटेटिव और मैथ्स, जनरल लैंग्वेज रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन और एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर. ये बहुत ईजी होता है गाइज, दिस इज़ वेरी ईजी.
इससे इजी हो नहीं सकता कोई एग्ज़ाम। इट इज़ जस्ट कि आपको 14 डेज बैठ के पढ़ाई करनी है, 3-4 घंटे, एंड आपका आराम से IHM पूसा निकल जाएगा। ट्रस्ट मी, I am I have graduated from IHM Mumbai and it is a very very chilled out life there. और ये जो इमेज में ये जो शेफ़ है, डोंट लाइक द इमेज इज आइडियल, ऐसा कोई हैप्पी नहीं होता। इट इज़ अ रॉन्ग इमेज। बहुत गालियाँ पड़ती है किचन में। सो व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ 3 डिजिट रैंक, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपको खुद को पूछना है। अगर आप मेरी मानो तो इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग 4 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम, दैट इज़ 1 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम जून में होता है, तो उसके 1 मंथ पहले प्रिपेयर करना। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, सो 3 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम एनी डे यू कैन क्रैक इट ईजीली। किताब मंगा लेना, 3 वीक्स पढ़ाई करना, इसमें से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और गाइस हर चैप्टर मत करने लग जाना इसमें, ठीक है। सो लेट्स गो इनटू दिस एज वेल, नहीं तो तकलीफ़ हो जाएगी यार। आप लोग कुछ अजीब करोगे तो सही नहीं रहेगा। सो लेट्स गेट इनटू दैट एज वेल। आई वोंट लीव एनी गेस वर्क हियर। सो लेट्स लुक इनटू द सिलेबस। अरे यार ये सब पता है, स्पॉटिंग द एरर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हम स्पॉटिंग द एरर्स की अगर बात कर रहे हैं, है ना, तो मुझे पता है कि स्पॉटिंग द एरर्स, सबसे पहले तो यार सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो, उसका लिंक भी देता हूँ मैं। सॉल्व पेपर होते हैं यहाँ पे, इन सबको सॉल्व मत करना इमीडिएटली। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2021 का पेपर उठाना है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको अगर आता होगा तो गुड, आपको नहीं आता होगा तो उसका सॉल्यूशन देखो। सिर्फ एक पेपर सॉल्व करो, ठीक है। जब आप एक पेपर सॉल्व करोगे ना, उसके बाद ये लिस्ट बनाओ आपकी रफ नोटबुक में, ऐसी नोटबुक में ऐसे धड़ाधड़ ये सब लिखते जाओ। ये जैसी लिस्ट है ना, इनफैक्ट इसी को रेफ़र करो, ठीक है। इसमें लिखो अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक्स दैट केम इन टू द एग्जाम ऑफ 2021. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली who want to get into IHM पूसा. This is the exact strategy which I used. Spotting errors के ना number of questions you have to write here. How many questions came in the exam? यहाँ पे आप लिखोगे 4, 2, फिर 3, फिर 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2, ऐसे एकदम यहाँ पे लिखना ना, यहाँ पे लिखना सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग का करना, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, इन सब के ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे से नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना, इसके भी और इसके भी, ठीक है। एक बार आपका ये दिस शुड बी योर फर्स्ट डेज टास्क। पहले दिन जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो आपको ये करना है, पहला पूरा एग्ज़ाम सॉल्व करना है और ये लिखना है कि किसमें कितने क्वेश्चंस थे, राइट। एक बार आपने ये लिख लिया, उसके बाद आपने पढ़ाई करनी है उन सेक्शंस की जिनके जवाब आपसे नहीं जमे, ठीक है। टाइम वाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टाइम एट दिस पॉइंट। एक बार आपने वो देख लिया कि कौन से गलत हुए, उन पे सर्कल करो जो आपके गलत हो गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सारे गलत हो गए, ऐसा होगा कि कुछ सही हुए कुछ गलत हुए, तो उन पे सर्कल करने की जगह आप टिक कर देना या आप मैनेज कर लेना जैसे आपको हैंडल करना है। यहाँ पे एक वो बना लेना, 4 क्वेश्चन की डंडियाँ बना लेना, जैसे भी आपको समझे। यहाँ पे फिर सर्कल करो जो आपका वीक एरिया है, ठीक है। रीअरेंजमेंट इफ़ आपका वीक है तो इस पर रीअरेंजमेंट पे भी सर्कल कर लेना, सिनोनिम पे सर्कल कर लेना और एनालॉजी पे सर्कल कर देना। अब जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको देखना है कि किस सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सेंटेंस कंप्लीशन नहीं जमा और आपका क्लॉज टेस्ट नहीं जमा और आपका एनालॉजी नहीं जमा। इसमें से एनालॉजी में से समझो 2 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन में से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको सेंटेंस कंप्लीशन पे इम्पॉर्टेंस देनी है और इसको पूरा ख़त्म करना है, 30 to 38 ख़त्म करना है। फिर आपको नेक्स्ट एनालॉजी और क्लॉज टेस्ट पे आना है। यही स्ट्रैटेजी हर जगह अपनाएंगे और एक बार जब ये हो जाए, विच विल टेक अ गुड 3 to 4 डेज़, आपको 2020 का पेपर देना है, ठीक है।
आप जैसे ही 2020 का पेपर दोगे फिर से एक लिस्ट बनेगा यहाँ पे, फिर से आप आपका जो भी है यहाँ पे लिखोगे और आप देखोगे इतनी प्रैक्टिस करने से ही आपका जो वीक एरिया है वो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और आपका स्कोर बहुत ऊपर चला जाएगा 2020 में। अब अगर आपको 95 परसेंटाइल जाना है तो ये जो मैंने 2021 में करा है वो फिर से 2020 पे करो, ठीक है। फिर से 2020 पे करो और फिर से ये सारी चीज़ें यहाँ लिखो और फिर से आपका वीक एरिया एनालिसिस करो और फिर जाके 2019 का पेपर दो। और एक बार जब ये हो गया अब बस वीक एरिया पे कंसंट्रेट करो और जैसे ही आपको जब भी टाइम मिले आप 2018 का पेपर दे दो और आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब आपको बुक नहीं खोलनी है, ठीक है। दिस इज़ डन, यू डोंट हैव टू टेक एनी एफर्ट इनटू एनीथिंग एल्स, ठीक है। कुछ और नहीं करना, अब बस एक चीज़ करनी है, वो मैं बताता हूँ क्या करनी है। लेट्स गो बैक टू द PDF। और रैंचो को टाइप का कोई स्टूडेंट है तो भाई 2 वीक पहले आप कर सकते हो। मैंने यही किया था, मेरे लग गए थे और इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मेरी कास्ट के वजह से मुझे किसी तरह HM मुंबई मिल गया, विच इज़ नॉट अ गुड वे टू गो अहेड। 3 to 4 वीक्स इज़ अ गुड टाइम, ठीक है। अब मॉक टेस्ट है, एडगोरिल्ला के है अवेलेबल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल गिव द लिंक टू योर डिस्क्रिप्शन। whatever you like, don't buy mock tests please, okay। कोई भी एग्ज़ाम का ले लो मॉक, बट प्लीज़ डोंट बाय एनी मॉक टेस्ट, इट्स नॉट द एग्ज़ाम इज़ नॉट वर्थ बाइंग अ मॉक टेस्ट ऑफ 2 to 3,000 रुपीज़, ओके। इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्ज़ाम, फिर आने प्रीवियस पेपर से हो जाएगा। डोंट बाय एनी मॉक्स, गिव एटलीस्ट 2 before the exam to get a hang of time management. See, the most important thing when you are giving the exam is time management. तो when you give a mock test ना, 3 घंटे का mock test में आपको उठना नहीं है, you have to create an exam like environment in the home. I know it will take a little effort from you, but अगर IHM पूसा जाना है तो ये करना पड़ेगा। You have to give 2 mocks before the exam, ओके। बिफोर द एग्ज़ाम मतलब कब बिफोर द एग्ज़ाम? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपर जून 6 पे है तो आपको जून 2 और जून 4 पे एग्ज़ाम देना है और उनको एनालिसिस करना। जून 4 थोड़ा लेट हो जाएगा, जून 1 और जून 2 जून 3 पे करो, उनका एनालिसिस करो और छोड़ दो सब, ठीक है। हो जाएगा एग्ज़ाम में, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है ना इस पॉइंट तक, तो आपने कहीं ना कहीं वीक एरिया एनालिसिस में गलती करी है और आपने कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ काम चोरी करी है, ठीक है। काम चोरी मत करना, जहाँ पे वीक एरिया है उसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है। उसको पूरा सॉल्व करो। मुझे नहीं लगता इतना डिफ़िकल्ट होना चाहिए इसको क्रैक करना, लेकिन अगर मेरे प्रोसेस में आपने कहीं भी थोड़ा खुद का टच ऐड किया तो गलती होने के चांसेस है। आपका इस स्ट्रैटेजी से आराम से 95 परसेंटाइल आ जाएगा। ट्राई टू गेट एन अटेम्प्ट ऑफ 175, ठीक है। 175 180 का अटैम्प्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई यूज़ टू गेट अ 200 का अटैम्प्ट, इट इज़ मोर ऑफ गेटिंग द क्वेश्चंस राइट। सो आप 150 160 का टारगेट रखो मॉक्स में, एग्ज़ाम डे के दिन ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगा। डोंट वरी अ लॉट अबाउट इट, एंड इफ़ यू डोंट गेट IHM पूसा, you'll get IHM Mumbai easily, right? Conclusions and important points to remember. This is a game changer. It's an easy exam and needs very less preparation to land into Mumbai or Pusa. Just make sure that you take little effort and get into these amazing government colleges and pay peanuts as fees. यार इन सब कॉलेजेस में जाने का फ़ायदा क्या है? You don't have to pay fees. IIHM जाओगे 20 लाख, कौन देगा, कहाँ से देगा? IHM मुंबई या पूसा जाओगे 3-4 लाख, दैट्स इट। आपके पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी हेल्प है, राइट। After the exam, counseling begins and it is just document verification at a nearby IHM or any local center. This would be easy. अगर आपने कास्ट का हेल्प लिया है तो मेक श्योर आप इस टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाते हो। They need a non-creamy layer for OBC students and for others it is a caste certificate or a PWD certificate, right? Hotel management is a difficult profession to be in. The life is a struggle, a lot of physical effort goes in, and it is not at all a cakewalk. To be ironic, it is not a cakewalk, right? It is difficult life. It's not going to be very
jolly over there. It is not like any other degree like your engineering friends or any your other polytechnic friends और जो लोग दूसरी degrees कर रहे हैं. It's not like that. It's a difficult life. If you're really passionate about culinary, if you're really passionate about hospitality in room service or all these things, if you really want to do it, you can go. Okay, so I spent a lot of time in making this video, right? So consider buying me a coffee if you found this video helpful. My UPI ID is Anmol Ramgiri at YBL. कुछ भी भेज देना, I don't mind. But just to keep this effort going on, I need something, right? I make these videos which help people and I deserve a coffee at least, guys. If not a coffee, a biscuit will also do. But don't send too much of your parents' money, guys. थोड़ा सा कुछ भेज देना to just keep me motivated. If you need on-call support, आपके मॉक्स में अगर अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, टू रिफाइन योर प्रोसेस, आई एम अवेलेबल अगेन. email me at ramgirianmol@gmail.com. I'll give you my phone number. I cannot give my phone number on this open domain वरना कॉल जानी शुरू हो जाएगी. Once you email me, I'll send you I'll talk to you on the phone, and I'll understand your process and what you have already done, and accordingly I'll help you out. So इसको भी आपकी ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास. दिस इज़ कम्प्लीटली what can I say, this is like a complete effort from me to help you out, to get you in IHM, any IHM which you desire. And I would really be happy अगर आप मेरी हेल्प से एक अच्छा कॉलेज स्कोर करते हो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो email ID. Cheers guys, all the best. I hope this video is helpful. Consider buying me a coffee. This is my UPI ID. I'll really appreciate it. But ज़्यादा कुछ मत भेजना, ओके? प्लीज़ प्लीज़ बहुत कुछ मत भेजना. मुझे पता है आप लोग नहीं भेजोगे, बट बहुत ज़्यादा कुछ मत भेजना. मेरे को आए 2-3 बार इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मत भेजना, राइट? Cheers guys, all the best. I hope you found this video helpful. My name is Anmol Ramgiri. And I wish you all the best for your exam. I want to see that chef hat on your head one day, and you sending me a WhatsApp image. I'd be really very happy when I see that. Okay then, that's it. Thanks a lot for watching the video, guys.